Hi. So in this video, we are going to cover the rest of the chapter of from chapter 5 valuation. So in the last video, I went through the contents of chapter 5 from the book How Finance Works by Mihir Desai. And I told that in the next video, I am going to prepare a summarized note on whatever we have learned from the chapter because it was an important chapter and a content heavy chapter indeed. So I have made a summarized note from the contents of the chapter, and in this video, we are going to cover the entire chapter from the notes, and uh, we are also going to see some of the case studies that are given in the end of the chapter. So, this is chapter 5, the art and science of valuation. The first point is that valuation is an art informed by science. Now, why is it? Because valuation is not certain. Different people or different agents involved may value a company in different ways, right? There is no certain, like, certified method of evaluating a company that you have to abide by these principles only. Okay. It is open to all kind of methods, but we have seen some of the most useful methods while evaluating. So next we come to different valuation methods. First is multiples. A multiples is a easy approach to valuation for valuating a company, and it is measured on PE ratio. So basically multiples का मतलब होता है कि PE ratio के कितने टाइम्स वैल्यू हो रखा है किसी कंपनी का, राइट? इसका एडवांटेज ये है कि ये इजी टू कैलकुलेट है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट इज यूजलेस व्हेन कंपेयरिंग कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट? क्योंकि आप एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल्स, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड व्हिच कम्स इनटू प्ले. दूसरा मेथड जो है दैट इज पे बैक पीरियड. अब पे बैक पीरियड का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है एज एन इन्वेस्टर, वो मुझे कितना जल्दी वापस मिल रहा है, राइट? अब ये इसका इस मेथड का लिमिटेशन ये है कि इट इग्नोर्स एनपीवी एनालिसिस एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन गोल. ये एनपीवी एनालिसिस को इग्नोर करता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन गोल को भी इग्नोर करता है. ओके. बिकॉज कितनी जल्दी हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस, एज एन इन्वेस्टर कितनी जल्दी हम अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं, ये कोई मेजर नहीं होता किसी कंपनी को एसेस करने के दौरान, राइट? पता चला कि एक साल बाद मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है वो एनपीवी के जरिए मैंने मेजर किया, तो पता चला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो डिलेड रिटर्न है वो ज्यादा आ रहा है. तो इन दैट ऑन दैट फ्रंट आई विल बी एट द लूजिंग एंड if I make my decisions according to payback period. Now the next common method of you know evaluating is internal rate of return. Now internal rate of return is kind of similar to NPV. Just the difference is that in case of internal rate of return, there is an ascertained rate, right? We try to diminish or reduce all the future cash flows to zero using an appropriate rate of return. That is called internal rate of return. Now, the limitation is that it focuses on return maximization, ignores value maximization. Okay, so that is its disadvantage. Now, the next and the best method is to use this method called discounted cash flow. How to find discounted cash flow? First, we have to find free cash flow, which is obtained by EBIT, earning before interest and taxes, minus tax, plus depreciation and amortization. Then we have to apply weighted average cost of capital. Then we have to calculate terminal value using perpetuity formula and add it to it.
and then obtain the value that we obtain after from this third step is called enterprise value, and we have to then compare it with market value. Okay, and the value thus obtained we have to analyze according to different scenarios like best, average, and worst, and then we have to assign weights to the probability of happening each of the events, and we have to arrive at a certain value that is called expected value. Now we have to come up with a bidding strategy as well. Like if my expected value is, let's say, $80, then $80 is the maximum I can afford to, you know maximum value I can afford to give. इससे कम नहीं हो सकता, राइट? एज द ओनर ऑफ अ कंपनी या फिर एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे 85 80 पता चलता है तो मैं इससे कम बिड करूंगा. Then we come to some common valuation mistakes. First mistake is that it ignores incentive of workers and agents. ओके, तो वैल्यूएशन करते वक्त कुछ मिस्टेक्स कॉमन होती है. उसमें से पहला मिस्टेक जो है दैट इज इग्नोर्स इंसेंटिव ऑफ वर्कर्स और एजेंट्स. नाउ इंसेंटिव वर्कर्स और एजेंट्स का कई बार नेग्लेक्ट किया जाता है, और उससे पता चलता है कि जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो पहले पहले फ्रंट में तो बहुत कम निकला कि ओके, कोई बात नहीं, इतना कम में मुझे मिल जाएगा. बट देन व्हेन वी ऐड द कॉस्ट ऑफ या फिर चार्जेस ऑफ वर्कर्स एंड एजेंट्स, वी कम टू नो दैट it has increased by multiple times. So this is one mistake that people tend to make while evaluating a company. Then exaggerating synergy. Now, what is synergy? Synergy in this case is the ability of two companies to work with mutual cooperation, right? Suppose मैंने एक कंपनी को कल acquire किया, so how easily and how quickly can it start to work with my company is the concept which we call synergy, right? Now, people while evaluating tend to make illicit assumptions on that the my acquiring company will be able to work well, cooperate well with my existing company. But that is not always the case, because let's say I acquired a different company from my industry. Okay, suppose I run a restaurant and then I acquired a shoe company. Then I will have a difficult time synergizing the two companies, right? The third is underestimating capital intensity. Now, underestimating capital intensity is another mistake. There is uh, there are chances that you know uh, the industry that yeah, फिर the company that I am acquiring is very capital intensive, and I tend to ignore that on the upfront. But after I acquired the company, I realized that I have to invest a hell lot of uh, money again to restart the company, smoothly run the company. So these are some of the mistakes that people tend to commit. Now we are going to, study the case studies at the end of this chapter. See, ideas in action. Investing in Spirit Arrow systems. So this is one interesting case study that is about two companies. One is Scopia Capital, which is the investor in this case, and Spirit is the company that manufactures aeroplane parts. Okay, so it is owned by Boeing, which hold 80% of share. Okay, I hope I am able to explain that Scopia is the investor in our case. Spirit is the company on which Scopia is investing, and what Spirit does is it manufactures aeroplane parts. Now,
80% of the Spirit company is held by Boeing, okay, which is another company, parent company. Now what happens is, uh, when there was this acquisition in under action, Scopia when acquired Spirit, like invested in Spirit, then after some time, Spirit's share price went down. Okay, see from here $2 to below $1. Now, why was this? See, when a company invests in a certain company, it expects the share price to go up so that it can earn some profit. But in this case, Spirit's share further went down. Now, why this happened? One problem was that Spirit's operating assumption about the profitability of these investments had been incorrect, and its projects had extremely long time horizons. It had to account for these charges upfront, which hit its income statement. The stock as a consequence dropped. Okay, पहला प्रॉब्लम ये था कि so this was the problem with Spirit, that उनका जो ऑपरेटिंग assumption था प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग, जो उन्होंने इन्वेस्ट नया नया अपने कंपनी पे किया था, they expected it to yield their profit soon, but that did not happen, because of which, क्यों नहीं हुआ वैसा, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है, दे हैड एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम हॉराइजंस। तो काफी लंबा प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से इमीडिएट रिटर्न नहीं मिल सकता था, और जिसका वजह से उनका इनकम स्टेटमेंट जो है हिट कर गया, और उनका एज अ कॉन्सिक्वेंस उनका प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस, वो ड्रॉप कर गया। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब investors were valuing Spirit based on its price to earning multiple, and its earning had dropped significantly. What are the problems with using PE multiple? अब क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है वो सिर्फ इस कंपनी को पीई रेशियो के बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे थे। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पीई रेशियो तो एज अ वैल्यूएटिंग मेजर प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? फर्स्ट, earning as represented by net profit are a problematic measure of economic performance. Okay, because it does not take into account the uh, many things, like it's some of the accounting principles are troublesome, and due to many reasons net profit is not a reliable measure. Okay, so that is what investors neglected. Second is that Spirit's earnings were temporarily diminished due to upfront investment. Okay, so उनको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कुछ करना पड़ा था, उसके लिए उनका जो बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट है वो थोड़ा डाउन हो गया था, बट और उसके वजह से फर्दर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे इम्पैक्ट आ गया था। अब ये सब देखते हुए स्पिरिट जो स्कोपिया कैपिटल है, वो क्यों फिर उस पे इन्वेस्ट किया, उस कंपनी पे, स्पिरिट एरोप्लेन पे? वो इसलिए क्योंकि स्कोपिया जो कंपनी है वो स्पिरिट का जो बिजनेस है उसको अच्छी तरह से समझती है। ओके, स्कोपिया ने उस बिजनेस को अच्छे से इवेल्युएट किया, और उसको पता चला कि ये जो डाउनटर्न है ये सिर्फ टेम्पोररी है। आगे जाके जो ये बिजनेस है, ये आगे जाके बहुत बड़ा, मतलब बहुत बढ़िया फल देने वाला है। ओके, अब ये क्यों है? क्योंकि हम्म, उनका जो इन्वेंटरी था, सी स्कोपिया वाज in a prime position to evaluate Spirit because Spirit was a leader in a niche business, creating aeroplane fuselage and wing assemblies that Scorpio understood. Because of this familiarity, Scorpio was able to take a deeper look at Spirit's business and determine if the problems that the market was detecting was truly warning sign. For example, as Spirit built its 787 business with Boeing, the company's
cash flows took a dive because Boeing was still in the design stage and therefore had delayed the manufacturing process. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि स्पिरिट जो है वो 787 बिजनेस है बोइंग के साथ। बोइंग क्या है? बोइंग एक एरोप्लेन का टाइप है। तो उसको 787 बोइंग बनाने थे, लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि बोइंग को बनाने में थोड़ा बहुत वक्त लग गया, ठीक है। और जिसकी वजह से इन्वेंटरी बहुत हेवी हो गया, और ये अच्छा साइन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए इन्वेस्टर्स ने क्या किया, अपना शेयर बेच देने लगे। तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो कम नीचे चला गया। ओके, but on the closer inspection, Scotia did not see these developments as problems at all. Although Spirit's cash flows were negative, this was only temporary. Okay, ये बात उन्होंने समझा, स्कोपिया कैपिटल ने, और उस पे इन्वेस्ट कर डाला उस कंपनी पे। उसका नाम है स्पिरिट। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ केस स्टडी कि इस केस स्टडी का समरी ये है कि कई बार होता है ऐसा कि मार्केट आपके कंपनी के ऑपरेशंस को मिसअंडरस्टूड करती है। ओके, इमीडिएट चीजों को देख के, जैसे कि यहाँ पे इन दिस केस पीई मल्टीपल को देखा कि पीई मल्टीपल इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि पीई मल्टीपल जो है उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो क्रॉस इंडस्ट्री कंपैरिजंस नहीं हो सकता उससे। एंड मोर ओवर दिस इज वेरी घटिया मेथड ऑफ वैल्यूएशन, बिकॉज बिकॉज इस ये नेट प्रॉफिट यूज करता है जो अर्निंग, वो जो है इनकम स्टेटमेंट से आते हैं, और इनकम स्टेटमेंट इज बाउंड बाय मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद स्टॉक पाइलिंग इन्वेंटरी, थिंक अबाउट डिस्काउंटिंग एंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज वेल एज नेचर ऑफ रिस्क। तो कहता है कि इन्वेंटरी हैवी जो बन गया ये कंपनी स्पिरिट, तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, राइट। तो हम जानते हैं कि इन्वेंटरी हैवी होना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट, स्पिरिट इज पेइंग नाउ फॉर अनसर्टेन फ्यूचर कैश फ्लोज दैट मे और मे नॉट रियलाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बोल के कुछ है, चार्जेस अपफ्रंट। इसका मतलब ये है कि आगे जाके जो कैश फ्लो आने वाली है उसको एज्यूम करके उसने अभी इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें ना चले, और उनको उनका जो चार्जेस है ये अपफ्रंट जितना भी पे किया है वो अ, फालतू चला जाए, राइट। सो दिस इज वन रिस्क दैट दे हैव टू गो थ्रू। और दूसरा कंसर्न ये है कि स्पिरिट का जो इतना सारा इन्वेंटरी है वो कभी भी ऑब्सोलेट और वर्थलेस हो सकता है, राइट। सो दीज आर दी टू कंसर्न्स, मेजर कंसर्न्स एसोसिएटेड विद स्टॉक फाइलिंग इन्वेंटरी फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। अभी हम जो है देखने वाले हैं डेल के बारे में एक स्टडी। ओके, सो डेल का क्या है सीन है कि September 13 2013 में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेक्नोलॉजी कंपनी डेल वॉज टेकन प्राइवेट। उसको बाई बैक, जितने भी शेयर मार्केट में थे वो बाई बैक कर दिया गया, किसके द्वारा? सीईओ ऑफ डेल, माइकल डेल के द्वारा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि डेल जो है अपने कंपनी में कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस करने वाली थी, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस केस स्टडी में देखा कि मार्केट अक्सर नहीं समझती ऐसे चेंजेस को, और वो अंधाधुंध शेयर बेचना स्टार्ट कर देती है। नाउ दिस इज व्हाट वी डोंट वांट, राइट। क्योंकि अगर वो शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे तो शेयर का प्राइस गिरेगा और हमारी कंपनी का वैल्यू गिर जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम अभी जो है इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी शेयर मार्केट में थे वो सारे पैसे देके बाई बैक कर लिए, राइट।
अब उससे क्या हुआ, सी 10, 10, 11, 12 में मतलब ये, सॉरी, ये स्पिरिट एरो सिस्टम का स्टॉक प्राइस है, लास्ट केस स्टडी। देखिए स्पिरिट का अंधाधुंध बेचना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, इन्वेस्टर्स ने, इसलिए 2012 में, राइट, सी 2012 में एक डिप आया, एक डिप आया, टेम्पोररी डिप। ओके, तभी इन्वेस्टर्स कंसर्न हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन कितना फायदा हुआ होल्ड करके, शेयर को होल्ड करके रखने वालों का, राइट। तो खैर ये तो हम लोग कर चुके हैं, डेल पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डेल एक फ्यूचर डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाली थी। क्या डिसीजन लेने वाली थी? डेल क्या करती है कि वो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप बनाती है। अब वो अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहती है, कहाँ पे? ऑन दी सॉफ्टवेयर मार्केट। ओके, सॉफ्टवेयर मार्केट। अब इसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैलेंस शीट में फर्दर डिप आएगा, इनकम स्टेटमेंट में कुछ टाइम के लिए दिखेगा, मतलब अच्छा इनकम स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा। ओके, जिसकी वजह से मल्टीपल जो है, विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन वो कम हो जाएगा। इसलिए डेल के जो सीईओ है, उसने जितने भी शेयर्स मार्केट में थे वो सारे खरीद लिए। अब ये खरीदते वक्त क्या हुआ कि डेल का जो एक्चुअल प्राइस था उस टाइम पे, ठीक है, वो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट वैल्यूएशंस लगाए। ओके, फॉर एग्जांपल, अभी मुझे मिल नहीं रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब डेल के वैल्यूएशन की बारी आई, तब बहुत वेरिड वैल्यूएशन हुआ। एक लाइक, एक 10 रुपया, कोई 10 रुपया वैल्यू कर रहा है, कोई 30 रुपीज वैल्यू कर रहा है। ओके, दिस मच डिस्क्रिपेंसी इन वन शेयर। अब डेल ने क्या किया कि डेल ने अपने ही शेयर सारे बाय बैक कर लिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन्वॉल्व है, विच इज कॉल्ड विनर्स कर्स। यहाँ पे देखिए, विनर्स कर्स। अब विनर्स कर्स क्या है कि सपोज डेल कोई अपना ही शेयर मार्केट में बाई कर रहा है, ठीक है, 12 रुपए में लेट से बाई किया। अब 12 रुपए से ऊपर जो भी बिड करेगा, अगर वो जीत भी गया, तो वो उसको मन ही मन एक वो रहेगा कि यार, एक कंपनी जो खुद मतलब जिसके पास एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है, उसने 12 रुपए वो जो है बिड करा है, उसके ऊपर मेरे पास कुछ खास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मैंने उससे बढ़कर बीट किया, तो मैं कहीं लॉस पे नहीं आ गया। ओके, सो दिस इज द फिनोमेना विच इज कॉल्ड विनर्स कर्स। और तो लोग 12 रुपए के आसपास ही रहते हैं, 12 से नीचे ही रहते हैं, 12 से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि जनरली
सीईओ को अपने कंपनी के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन पता होता है, राइट? तो इसलिए होता है कि लोग जनरली, सीईओ जब बाईबैक करता है अपने कंपनी के शेयर्स को, तो उसके ऊपर बिड नहीं करते हैं जनरली। ओके, सो दैट इज द केस, दैट इज द एंटायर केस इन दिस सिनेरियो। सो उसके बाद बहुत सारे कोर्ट केसेस चले, राइट? बहुत सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर, मतलब हियरिंग्स हुआ यूएस के कोर्ट में। और फाइनल वर्डिक्ट ये निकला कि माइकल डेल को जो है दोबारा से, मतलब इट द स्टॉक प्राइस वाज वैल्यूड एट 25% लॉस। मतलब 25% कम दाम पे माइकल डेल ने सारे पैसे खरीद लिए, और उनको अपने इन्वेस्टर्स को सही वैल्यू मतलब लौटाने पड़े, बहुत सारे पैसे लौटाने पड़े इन्वेस्टर्स को। ठीक है। Ultimately, the court decided that the fair value of Dell was not $14 per share that had been agreed on that time of sale, but $18 per share. The court concluded that the company was sold at 25% cheaper than it should have been. So the conclusion to the case resulted in Dell paying additional $4 to the shareholders. ठीक है. So this is what happened. And this is called winner's curse, कि जब कोई सीईओ अपनी ही कंपनी का शेयर परचेज करता है, तो वो कम प्राइस पे अगर बिड बिड भी करता है, तो उसके ऊपर कोई बिड नहीं करता है। ओके, दैट इज बिकॉज दिस दैट इज बिकॉज ऑफ विनर्स कर्स, जो कहता है कि एक कंपनी के सीईओ को अपने कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता है। वो अगर किसी कोई एक पार्टिकुलर प्राइस बिडिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर जनरली कोई लोग यू नो नहीं बिड करते, क्योंकि अगर बिड किया तो बाद में अफसोस होता है कि यार उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं कहीं घाटे पे तो नहीं आ गया, राइट? सो दिस इज व्हाई दिस इज व्हाट हैपेंड बेसिकली। एंड विद दिस वी एंड दिस chapter of chapter 5 of how finance works. I will try to be more enthusiastic next in the next video. uh, so I hope to see you in the next video as well. Thank you.